সবাইকে জয় যিশু। 2024 সালে আমরা প্রত্যেকে আনন্দিত থাকবো। আনন্দ সবাইকে জয় যিশু। 2024 সালে আমরা প্রত্যেকে আনন্দিত থাকবো, আনন্দ করব। 2023 সালে 23শে ডিসেম্বর যে আমি বাড়িতে প্রভুর উদ্দেশ্যে যে জন্ম মাস পালন করা হয়েছিল, আমার ওখানে আমি একবারে এক গ্রামে থাকি। সেই গ্রামের মধ্যে চারিদিকেই প্রার্থনা হয়, কিন্তু সব জায়গাতেই তুলে দেওয়া হয়েছে। তো যখন আমার অনুষ্ঠান শুরু হলো, এর আগে আমি সাক্ষ্য দিয়েছিলাম যে আমার বাড়িতে কোনো একজন মারা গেছিল, কেউ নিয়ে এসে দাহ করবে বা ওখানে কবর দেবে বলে এরকম প্রস্তুতি নিয়েছিল। আমি প্রভুভোজ নিতে এসে ফিরে গেছি। তো সেই থেকে আমার ওপর মানে এতভাবে অত্যাচার করেছে, সঙ্গে শুধু প্রভু আর আমি। তো আমার আত্মিক পিতাকে আমি সব বলতাম ফোন করে যে বাবা প্রার্থনা করুন যেন আমি অনুষ্ঠানটা করতে পারি। হঠাৎ 23শে ডিসেম্বর শনিবারে প্রার্থনা এই অনুষ্ঠানটা হবে। আগের শনিবারে, তার আগের শনিবারে রাত্রিবেলা 50 জন আমার বাড়িতে নেশা ভাঙ করে গেছে। আমাকে গিয়ে বলছে তোমার এই অনুষ্ঠান বন্ধ করতে হবে। আমি বললাম কারণটা কি? কোনো কারণ জানি না, এই গ্রামে কোনো প্রার্থনা করা যাবে না, কোনো অনুষ্ঠান করা যাবে না। আমি আঙুল তুলে বললাম এটা গণতান্ত্রিক দেশ, সবার অধিকার আছে, যে যাকে পারে ডাকতে পারে, কারো অধিকার নেই এখানে কেউ কাউকে বাধা দিয়ে আটকাবে। যে যার বাড়িকে সামলাতে পারে, কিন্তু আমার বাড়ি সামলানোর কারো অধিকার নেই বলে এবার অনেক অশান্তি হলো। রাত্রিবেলা ওখানে চেঁচামেচি করার পর 4 জন মহিলা আমরা উপস্থিত হলাম। ঈশ্বর আমাদের 4 জনকেই বাঘিনীর মূর্তি দিলেন। মানে আমরা একবারে কি বলবো, 4 জনই এক হয়ে গেছি। তারা শেষ পর্যন্ত নেমে চলে গেল। বলছে তুমি কি করে অনুষ্ঠান করো দেখব। আমি বললাম আমি জীবন্ত ঈশ্বরের প্রার্থনা করি, আমি কোনো ঘুমোনা ঈশ্বরের প্রার্থনা করি না বা মরা ঈশ্বরের প্রার্থনা করি না, আমি জীবন্ত ঈশ্বরের প্রার্থনা করি। আমি এটা জোর দিয়ে বলছি, আমার জীবন্ত ঈশ্বরের আমি প্রার্থনা করছি। আর ওই দিন অনুষ্ঠান হবে হবে হবে, তোমরা কে আটকাবে? আমি পুলিশ দাঁড় করিয়ে অনুষ্ঠান করব। আমার ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করবেন। প্রভু সর্বসময় বলেছেন তুমি ভয় করিও না। বাবা সর্বসময় প্রার্থনা করেছেন ওখানের জন্য যেন অনুষ্ঠানটা সুন্দরভাবে হয়। তো প্রভুকে ধন্যবাদ। প্রভু তার বাক্যে বলেছেন তোমাদের চিন্তা আর আমার চিন্তা দুটোর মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। তো আমি যে চিন্তা করেছিলাম প্যান্ডেলে আগুন ধরিয়ে দেবে, রেডি হয়েছে, প্রভুর হাতে রাখলাম। প্রভু আজ রাতে নাকি প্যান্ডেলে আগুন দিতে আসবে। প্রভু তুমি রক্ষাকর্তা, তুমি জীবন্ত ঈশ্বর, সর্বসময় তুমি এখানে গার্ড দাও যেন কেউ না আসতে পারে। তো প্রভুকে ধন্যবাদ দিয়ে 2টো রাত আমার চোখ থেকে ঘুম চলে গেছিল, আমি আর ঘুমাতে পারি না। তো প্রভুকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আমি যে চিন্তা করেছিলাম পুলিশরা আসবে কি, থানা থেকে আসবে কি, ঠিক তার বিপরীত ঈশ্বর করে দিয়েছেন। অনেক পুলিশ এসেছেন, এখান থেকে অনেক ভিআইপি লোক গেছিল। যাক কি বলবো, কিছু কেমন মানুষ গেছিল, ওদের নাম আমি বলছি না। তো সুন্দরভাবে অনুষ্ঠান হয়েছে যে চারিদিক থেকে এত ফোন আসছে বলার মতো নয়। আমার পাশের গ্রামের একজন পুলিশ, এখানে একটা এয়ারফোর্স আছে না, ওইখানে থাকেন উনি গর্ব করে বললেন উনি জানেন না আমি এই চার্চে এখানে আসি, আমার বাড়ি যাবেন উনি, আজকে নাহলে কালকে যাওয়ার কথা। তো উনি বললেন যে গ্রামের মধ্যে একজন মহিলা এরকম ঈশ্বরের প্রার্থনা করছেন, এত মানুষ সুস্থ হচ্ছে, তা ওদের অসুবিধাটা কোথায়? ঠিক আছে, পরের বারে আমরা সবাই মিলে ওনাকে সাহায্য করব যেন এই অনুষ্ঠানটা আরও বড় হয়। তো প্রভুকে কোটি কোটি ধন্যবাদ, এত সুন্দরভাবে সাহায্য করেছেন, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु के। ना हम तो बाहर में गए थे 4 दिन खातिर, तो 4 घंटा खातिर तो बोल रहे हैं, डॉक्टर बोला बहुत सीरियस केस है, बच्चा होना है। हम खुद चिंता हम नाम में प्रभु के ऊपर छोड़ दिए, प्रभु मेरा सब कुछ ठीक कर देगा। डॉक्टर बोला नस फट जाएगा,
कान कौआ। हमको भरोसा था मेरा पिता ठीक और दोनों को ही बचाएगा। अच्छा से हो गया परसों। हेलो, घर हम कैसे आएंगे? हम तो अभी हावड़ा से निकल रहे हैं, तो हमको घर में जाने भी 2 घंटा लगेगा। तू फोन रख। हम क्यों पार्क से घूम के नहीं आए, हम क्यों चिड़ियाखाना नहीं गए, हम अपने जिंदा खुदा यीशु मसीह के घर में आए हैं। तू फोन रख, अभी हम प्रे करते हैं। वो फोन रखा, हम प्रे किए कि पिता हम तो कहीं नहीं गए, तेरे पास आए पिता। जब पिता हम घर जाए, मेरा बच्चा जैसे था पिता हमको ऐसे पिता वहाँ जाके हम पाए। सच्ची पिता का हम धन्यवाद करते हैं। हम दुआ प्रार्थना ट्रेन में किए, मेरा पिता मेरे बच्चे को एकदम सही सलामत मेरे घर तक पहुँचाया। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। बहुत ही बड़े आशीष किया जो हम लोग देख पा रहे, समझ पा रहे। कितने काफ़ी खर्च, 3-4 लाख के ऊपर। मुझे नहीं मालूम कैसे आया, किस तरीके से आया, और काफ़ी खर्च ये साल में भी। मगर प्रभु को धन्यवाद है कि प्रभु हम लोग आप लोग की प्रार्थना से परमेश्वर ने हमें संभाल रखा है। जो हम ईमानदार सच्चे होकर प्रभु की सेवा कर पा रहे। आप लोग का प्यार, आप लोग का हाथ बढ़ा हुए से हम लोग प्रभु को इतना बड़ा सेवा आज कर पा रहे। हम लोग को गर्व है कि प्रभु हमारा यीशु मसीह जीवित मिशनरी है जो हम लोग को कमी को पूरा करता है। 31st नाइट को ही परमेश्वर ने प्रभु आशीषित किया बहुत। काफ़ी लोगों को आशीष किया, काफ़ी लोगों का गवाह मैं सुन रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति गवाह दे रहे जो मुझे, मेरा मन एकदम खुमार मतलब खुशी से भर जाता है कि जो प्रभु का दास को परमेश्वर देता है वो व्यर्थ नहीं हो रहा है, फल ला रहा है। कितने जिंदगी, कितने लाइफ को परमेश्वर ने बदलाव दिया मैं सुनता हूँ। 23 ডিসেম্বর যখন আমরা বন্দি পালি, ওখানে আমি আগে থেকে ঘন্টা করতাম। আমার রাত ভরে যখন প্রার্থনা করতাম, সেই বনজেন প্রার্থনা করতাম। আমি জানি মানুষের ঝড় বৃষ্টি কেরম হয় আর কত সময় থাকে, কারণ সেই জায়গা থেকে আমি গিয়েছি। রাত আমি বসে প্রার্থনা করতাম তোমার জন্যে, তোমার ওইখানে মৃত্যুর জন্যে, 23 তারিখের জন্যে সব শয়তানকে আমরা বাঁধতাম। কিন্তু প্রভু জয় দিয়েছে। আর সব থেকে বড় জয় আমার যেটা 22-এ ভাবানি হয়েছিল কি এখানে একটা চার্চ হবে, আর 23 ডিসেম্বরে যেটা আমি তোমাদের ওখানে বসে আমি चोखे जोल फैलीছিলাম। 23 दिसंबर को उदयनारायण मैंने प्रिंटिंग के बाद में वहाँ आंसू मैंने गिराया था कि प्रभु यहाँ एक चर्च होना है। 80 आंसू से चोखे जोले उत्तर আমরা পেলাম দীপালি দানা। ওইখানে চার্চ শুরু হয়ে গেছে, পিলার অলরেডি গাড়া হয়ে গেছে। হালেলুয়া। প্রভু এরম বোনদেরকে এদের এরম শিক্ষাদেরকে তৈরি করতে চায়। এখন টিন লাগাবে, তাই তো, টিনের সেট করবে। হ্যাঁ, আর আমি তোমাদেরকে ভালোবাসি, আমরা কিছু নয়, কিন্তু গতকাল প্রভু আমার সঙ্গে কথা বলছিল। হ্যাঁ, তো আগে আমি বললাম প্রভু তো মেয়েকে আমি কী করব, আমি তো জানি কত কষ্ট একটা সেবা, একটা রান্না করা, বাজার করা কতটা বোঝ হয়। তখন প্রভু আমার সঙ্গে কথা বললো, কিছু আমি বানাও, প্রভু আশীর্বাদ করবে, কিন্তু আমি ওই সাথে জন্য 10,000 টাকা
আমি ভালোবাসা দিচ্ছি কি আমাদের মন্ডলী এখানে হচ্ছে, এটা তোমার চার্চের জন্য 10,000 রুপিস শ্রীনিবাস ভাই দিয়ে দাও। এটা 80,000 টাকা प्रभु से पूर्ण करबे। हम लोगों का मिनिस्ट्री एक आलादा मिनिस्ट्री है। প্রভুকে ধন্যবাদ যে অনেক কষ্টে আজ সেখানে মণ্ডলী চার্চ শুরু করেছি, তো প্রভুর দাস আজ বড় দান দিয়েছে, এর জন্য প্রভুর কাছে কোটি কোটি ধন্যবাদ। সকলে ওখানের জন্য প্রার্থনা করবে, কেন আমরা সকলে এক ভাই বোন, কারো যদি একটু ক্ষতি হয় আমরা একে অপরের জন্য চোখের জল ফেলবো ঈশ্বরের কাছে, একে অপরের জন্য প্রার্থনা করব। তাই আমি সকলকে বলছি উদয়নারায়ণপুর ওখানে চার্চ হচ্ছে, প্রত্যেক ভাই বোন আমার যেন প্রার্থনা করে আমার জন্য। ধন্যবাদ। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। बेटा अगर रोटी मांगे पिताओं से पत्थर न देगा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। बेटा अगर मछली मांगे, बेटा अगर मछली मांगे पिताओं से सांप न देगा। पिताओं से सांप न देगा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। वो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। बेटा अगर क्षमा मांगे, बेटा अगर क्षमा मांगे पिताओं से आशीष देगा। पिताओं से आशीष देगा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। हम तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद 2023 का आशीष के लिए। 2024 का पहला रविवार के लिए तालियां बजा के खोल के मन खोल के प्रभु को तालियां बजा कर धन्यवाद। प्रभु ये मंडी तुझे धन्यवाद दे रहा। 2023 का आशीष 2024 के आशीष के लिए प्रभु तूने आशीषित किया। मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, तुझे महिमा मिले प्रभु। तू आशीष का परमेश्वर है, तू आशीष का सोता है, तू आशीष का भंडार है परमेश्वर तेरे पास में। तू आशीष दिया है, देगा, देते रहेगा प्रभु। मैं तुझे धन्यवाद दे रहा प्रभु। आज जो मैं चाहता हूँ ना, जो तू चाह रहा प्रभु, आज हर एक से बातें कर प्रभु। आज तुझे महिमा मिले यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो कि भाई शंकर বোন দীপালি উদয়নারায়ণ চার্চের জন্যে বোনকে 5,000 টাকা দিতে চাইছে। আমরা তালি बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये सबसे बड़ी परमेश्वर का जो काम है, जो प्रभु तुम्हारे के आशीर्वाद करो। ओके
आज एक रविवार, पहला संडे, फर्स्ट संडे 2024 का। आज महत्वपूर्ण दिन है आप लोग के लिए, हमारे लिए, सबके लिए। हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो शुरू से आशीष देकर अंत तक ले आशीष किया। कौन भाई बहन बताएंगे कब आशीष दिया परमेश्वर? कब से आशीष किसको दिया बताओ? आशीष कहां से परमेश्वर शुरू किया? कब से क्या क्या आशीष दिया परमेश्वर? कोई भी नहीं याद? बोलो। हाँ? ओके ओके, गॉड ब्लेस यू। आदम हवा को आशीष किया फूलो फलो उत्पत्ति में। ओके, और कोई? और कोई? अब्राहम का आशीष। ओके, और? आज महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए, हमारे लिए, पूरे देश के लिए। ये आशीष जो शब्द है, आप जो बोले अच्छी बात है, मगर सबसे शुरू परमेश्वर ने जो ये आशीष परमेश्वर ने 7 दिन बनाया। शब्द से बनाया। पहले दिन को अच्छा दिन कहा, दूसरे दिन को अच्छा कहा, तीसरे दिन को अच्छा, चौथे को अच्छा, पांचवें को अच्छा कहा, और छठवें दिन परमेश्वर ने अपने ही रूप में आदम और हवा को बनाया। कितने दिन में? 6वां दिन में। अब महत्वपूर्ण शब्द परमेश्वर का, सातवें दिन को परमेश्वर बनाकर, सातवें दिन से परमेश्वर ने आशीष शुरू किया। उत्पत्ति 2 अध्याय 3 पद, आदि पुस्तक 2 अध्याय 3 पद। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। बांग्ला में। আর ঈশ্বর সেই সপ্তম দিনকে আশীর্বাদ করিয়া পবিত্র করিলেন, কেননা সেই দিনে ঈশ্বর আপনার সৃষ্ট ও কৃত সমস্ত কার্য হইতে বিশ্রাম করিলেন। आमीन। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। आमीन। आमीन। ओके। परमेश्वर ने 7वें दिन को अरे मौसी लोग, दादी लोग, ठंडा तो नहीं है? सब यहाँ देखो, ठंडे में बोला जोर से, तो मुख आज खुल नहीं रहा मुंह। बोलो तो, पढ़ो फिर फर्स्ट लाइन। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी। परमेश्वर ने 7वें दिन को
आप बोलिए ना, प्रभु आपको आशीष क्या है? बोलो, प्रभु तुम्हारे आशीर्वाद करो, 7वें दिन आशीर्वाद करेছে। अब रह गया सवाल, महत्वपूर्ण सवाल आज जो है आप लोग के लिए, हमारे लिए। प्रभु ने 7वें दिन को आशीष किया, पवित्र कहा, विश्राम के दिन कहा। आज हम भविष्य में आशीष हमारे घर परिवारों में नहीं होता है, कारण क्या है? आज हम 30 साल से चर्च में आ रहे, मगर हमारे घर में कोई बरकत, कोई खुशहाली नहीं। क्या कारण है? क्यों? कभी भी हम सोचते नहीं इस बातों को। कि प्रभु ने 7वें दिन को जो आशीषित किया, पहले इंसान को अपने रूप में बनाया, नर नारी बोलकर दोनों को आशीषित किया। बस क्या यही हमारा आशीष समाप्त है? प्रभु यीशु 6 दिने মানুষ কে তুললেন, 7वें दिन পবিত্র বলে আশীর্বাদ করলেন। সেই পবিত্র দিন, বিশ্রাম দিন, আজকে অনেক সময় আমরা ভাই বোন রবিবার চার্চ মিস করি, ঘরে থেকে যাই, পার্টিতে চলে যাই, কোনো লাঞ্চ ডিনার পার্টি প্রোগ্রাম, কোনো বেড়াতে পিকনিক। প্রভু দেখো কালকে ভর্তি হয়ে যাবে এখানে। আপনি নিজে ক্ষতি করছেন, কারো ক্ষতি হচ্ছে না। ये जो परमेश्वर जो 6 दिन बनाकर इंसान को 7वें दिन में आशीष किया, विश्राम और पवित्र का, आज हम लोग 7वें दिन विश्राम के दिन में अपने घूमने के लिए पिकनिक, लंच पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, इस घर उस घर, ये चर्च और चर्च हम चले जाते हैं। आप खुद अपने को धोखा दे रहे हैं। प्रभु का आशीष शुरू से अंत तक परमेश्वर ने आशीषित किया। इंसान को हमारा परमेश्वर जो यीशु है, जीवित परमेश्वर जीवित है, जो इन सृष्टि को सिर्फ नहीं, सृष्टि को, इंसान को, सूर्य चंद्रमा आकाश तारागण जीव जंतु गांचे को बनाने वाला परमेश्वर, जो इंसान को बनाकर इतने बड़ा सृष्टि पर रखा, ऐसे नहीं रखा परमेश्वर ने। लोग आज आशीष खोजने जा रहे, कोई धर्म गुरु के पास नहीं, कोई भगवान के पास नहीं, कोई राजनीति नेता किसी के पास भी नहीं है। आशीष जो है वो परमेश्वर यीशु के पास में है। और वो आशीष जो है परमेश्वर, प्रिय भाई बहनों, वो आशीष इंसान के लिए, हमारे आप के लिए रखा था परमेश्वर ने। आज इंसान पूरे साल काम कर रहे, मेहनत कर रहे, परिश्रम कर रहे, मगर घर में कोई बरकत नहीं है, घर में कोई आशीष नहीं है, घर के अंदर कोई खुशहाली नहीं है। सोचिए प्रिय भाई बहनों, लोग बिजनेस कर रहे, बड़े बड़े बिजनेस पर, वहां भी कोई खुशियां नहीं है, कोई आशीष नहीं है। क्योंकि हम यीशु प्रभु को करीब से नहीं जान रहे। हम चर्च में आते हैं, चर्च से चले जाते हैं, जितने समय चर्च में बैठे उतने समय चर्च में थोड़ा सुनते, थोड़ा बाहर सुनते, बाहर जाने के बाद दूसरे बुराई करना शुरू कर देते हैं। इस वचन को जो परमेश्वर का आज सुनते हम, उसको हम भूल जाते हैं। मगर आज के लिए आपके लिए गुड न्यूज है। बीते रात परमेश्वर बातें कर रहा था, मैं बोला प्रभु कल का फर्स्ट दिन, पहला रविवार है,
अब क्या अपने इंसान अपने बच्चे लोग के लिए रखे परमेश्वर? रात में परमेश्वर ने बातें किया, सुबह भी बातें किया, प्रचार करता उस समय भी परमेश्वर मुझे बातें किया। आज हम प्रिय भाई बहनों, एक अच्छे मसीह प्रभु यीशु मसीह का बेटा बेटी आपको बनना है। दूसरी बात, आपको मालूम कि आपका पिताजी के पास क्या है क्या नहीं है? सब कुछ है यीशु के पास। मगर महत्वपूर्ण बात है, परमेश्वर ने जो इंसान को बनाया, उत्पत्ति 1:28 में कहता कि परमेश्वर ने नारी को आशीषित किया, पृथ्वी को बनाकर आशीष किया, पवित्र बनाया, विश्राम दिन कहा। मगर इंसान को बनाकर आशीष किया, फूलो फलो बढ़ते जाओ। 2 नंबर। 3 नंबर महत्वपूर्ण बातें, 3 नंबर महत्वपूर्ण बातें, जो इंसान के सारे कामों पर आशीषित किया। इंसान के सारे उद्देश्यों को परमेश्वर ने बदल डाला, इंसान को आशीष से भर दिया। अब बना के आदम हवा को सिर्फ आशीष देकर छोड़ा नहीं, मैं उनके सारे सब कुछ पर परमेश्वर ने आशीष किया। अब्राहम को कहा था, अब्राहम तो वहां से उठ। अब्राहम ने परमेश्वर से पूछा नहीं कहां जाऊंगा, क्या करना है, मुझे नहीं मालूम। अब्राहम में उठा और चल पड़ा। जब अब्राहम ने परमेश्वर की बातों को मान के चला, तो अब्राहम से परमेश्वर एक बात कहा, मैं तुझे आशीष करूंगा, तू आशीष का श्रोता होगा, तेरे कारण देश के लोग आशीष पाएंगे, तेरे कारण मैं तेरे वंश को आशीष करूंगा। आज प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने आपको आशीष किया है, आप परिवारों को परमेश्वर ने आशीष किया है, आपके वंश को आशीष किया है, आप एक आशीष के भागीदारी है। आप अपने देश को आशीष कर सकते, अपने घर परिवार को आशीष कर सकते, अपने बाल बच्चे को हाथ उठाकर आशीष कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। যিশু প্রভু মানুষকে তৈরি করে 70 দিন বিশ্রাম আশীষ করলো, বিশ্রাম করলো, পবিত্র বলে ঘোষণা করলো, আদম হাওয়াকে আশীর্বাদ করলো, ফুলো ফলো। কিন্তু আব্রাহামকে বললো তুমি উঠো। আব্রাহাম জিজ্ঞাসা করিনি প্রভুকে কি করব কি না করব। আব্রাহাম উঠলো, চললো। যিশু আনন্দিত হলো, এই ছেলে আমার বাধ্য কথা শুনে, আমার কথা শুনেই চলে, আমার সঙ্গে আর্গুমেন্ট করেনি, আমাকে জিজ্ঞাসা করিনি, কোনো কোশ্চেন করিনি, কোথায় যাব কি করব, চিনি না জায়গা, রাস্তা জানি না, জিজ্ঞাসা করিনি। প্রভু আনন্দিত হলো। আজকে আমাদের যেভাবে যিশু বলে সেভাবে যদি আমি তার কথা শুনে চলি, প্রভু আশীর্বাদ আমাদের সঙ্গে থাকবে, কেউ কাটতে পারবে না, কেউ কাটতে পারবে না। প্রিয় ভাই বোন, আজকে আব্রাহাম ঈশ্বর আমার আপনার ঈশ্বর আছে। 1980-তে প্রভু যিশু আমাকে আশীর্বাদ করেছিল, আমাকে মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছিল। এই পিছিয়ে আমার এখানে জন্মস্থান কলকাতায়, কিন্তু আমাকে এখান থেকে নিয়ে শ্যামপুর নিয়ে গেল। ছোট ঝোপড়ির মধ্যে ছিলাম, ধর্মা ঘর ছিল, ভাঙার টিনে, খাবার বাসন ছিল না। আমি জিজ্ঞেস করিনি, ওখানে গিয়ে 1-2 জনকে, 4-5 জনকে আমরা প্রভু কাজে নিয়ে আসলাম। প্রভু বলে এই জায়গা তোর নেই। পরে একটা বাড়ি দিল পাকা, তারপরে 84-এ আমাকে কোয়ার্টার আনলো, ডিফেন্স কোয়ার্টারে বেলুরে।
বেলুরে প্রভু 3 সময় আমার সঙ্গে 3 বার প্রভুকে দেখেছি, সামনে কথা বলেছে আমার সঙ্গে। একদিন আমি স্বর্গে পৌঁছেছি, আমার দেহ ঘরের মধ্যে ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, প্রভু তুমি আমার কলকাতা থেকে এত দূর কানে আনলে? কেন আমি প্রভু কথা শুনে বেরিয়ে গেছিলাম। আমার মা বাবা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। আব্রাহাম কথা শুনে বেরিয়ে গিয়েছিল, তার মা বাবা জিজ্ঞাসা করেছে কিন্তু বলিনি কিছু। আমি যখন বেরিয়ে গেলাম, আব্রাহামকে একটা কথা বলেছিল, তোমার দ্বারা তোমার বংশ দেশ আশীর্বাদ পাবে। একজন লোগিন দ্বারা এত বড় মন্দির হলো, হালেলুয়া, এত লোক প্রভু আশীর্বাদ পেল। এইটি হচ্ছে গুরুত্ব কথা, প্রিয় ভাই বোন, এইটি হচ্ছে গুরুত্ব জিনিস, এইটি গুরুত্ব জিনিস। দীপালিকে সেরকম করছে, প্রভু গ্রামে আশীর্বাদ দিয়েছে। একটাই दीपाली গ্রামে उदयनारायणपुर आलो आचे। आमीन, हालेलुया। आज मैं परमेश्वर प्रिय भाई बहनों, मगर महत्वपूर्ण बातें, जब अब्राहम से कहा कि अब्राहम उठ चला जा, अब्राहम चलना शुरू किया। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा था? चलो उत्पत्ति 12 अध्याय का लो, 1 से पढ़ो, 1 2 3 4। आदि पुस्तक 12 अध्याय 1 2 3 4। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक ऐसी बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन। तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। भूमंडल के सारे कुल लोग तेरे कारण, तुम्हारे कारण। आज प्रिय बहनों, आपके द्वारा आपका परिवार आशीष पाएगा, आपके द्वारा आपके वंश के लोग आशीष पाएंगे, आपके द्वारा जहां रहते हो गांव के लोग आशीष पाएंगे। हम भारत में रहते, भारत के लोग आशीष पाएंगे। वेस्ट बंगाल में हम वेस्ट बंगाल के लोगों को परमेश्वर कहा कि आशीष कर, मैं तुझे आशीष करूंगा। साधारण लोग नहीं, हम मसीह लोग साधारण नहीं प्रिय भाई बनो। बच्चे लोग, तुम लोग भी साधारण नहीं, सब आशीष पाए हो। तुम लोग बच्चे आशीष पाए हो कि अब्राहम को कहा, मैं तेरे वंश को आशीष करूंगा। उत्पत्ति 26 अध्याय का लेंगे, आदि पुस्तक 26 अध्याय 3 पद और 12 पद। तू इसी देश में रह, और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। आमीन। आप ध्यान देना, पिन से पढ़ेंगे, पिन से 3 पद। इसी रीति तू इसी देश में रह, और मैं तेरे संग रहूंगा। इसी देश में रहो, मैं तेरे संग रहूंगा। दूसरी बात, और तुझे आशीष दूंगा। और तुझे, आप अगर प्रभु के साथ रहेंगे तो प्रभु आपके साथ रहेगा और प्रभु आपको आशीष भी देगा। आमीन। अगर प्रभु को छोड़कर, मंडली को छोड़कर दूसरे जगह मंडली में आएंगे तो परमेश्वर आपको आशीष नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर खेला का नहीं है। परमेश्वर को लेके खेला नहीं कर सकते। परमेश्वर का अभिषेक दास आत्मिक मंडली को तिरस्कार, धोखा देकर आप शांति से नहीं, आशीष से नहीं रह सकते हैं। मैं तेरे संग रहूंगा, इसहाक को बोला, मैं तुझे आशीष करूंगा। 12 पद। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। आमीन। तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। महत्वपूर्ण बातें, ये महत्वपूर्ण बातें
ध्यान से सुना, पढ़ेंगे थोड़ी सी जोर से। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। आज प्रभु यीशु मसीह किसान भाई और बहनों को भी आशीष कर रहा है, करेगा, करता रहेगा। अगर प्रिय भाई बहन किसानी करते हैं, आपका चाष बास कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपके चाष बास में आशीष करेगा। अब्राहम के वंश को आशीष का इसराक को कि जिस देश में तू है मैं तेरे संग रहूंगा और तू जोतेगा, बोएगा और आशीष पाएगा। आज हमारा आपका बाल बच्चा उन्नति करता रहेगा, जोतेगा, बोएगा। इसके बाद और उसी वर्ष में 2024 में आप आशीष पाए हैं, आशीष पाएंगे। आपका वंश आशीष पाएगा, आपका रोजगारों में आशीष होगा, आपके कारोबार में आशीष होगा। हमारे वेस्ट बंगाल भारत में आशीष ही आशीष आशीष होता रहेगा। हम इस परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम बाइबल पढ़ते बगैर ऊपर से पढ़ते, हमारी जिंदगी को परमेश्वर बदलता नहीं है। कि परमेश्वर का हर आशीष जो हमारे आपके लिए ईमानदार व्यक्तियों के लिए है, जो परमेश्वर कहता है कि जो ईमानदार है सच्चे मनुष्य पर बहुत सारे आशीष रहते हैं। परमेश्वर ने बना के छोड़ा नहीं, मगर बना के आशीषित किया। पहली बात, इसहाक उद्देश्य में रहा, उद्देश्य में खेती करता रहा, बोता रहा, परमेश्वर के साथ था। और उसी वर्ष में परमेश्वर ने इसहाक को खेती पर आशीष किया। आज आपके घर बाल बच्चे को आशीषित करेगा परमेश्वर। ये 24 साल परमेश्वर हमारे आपके लिए आशीष का दिन रखा है, आशीष का महीना है। आज कैसी भी कहीं भी हो प्रिय भाई बहनों, आप सबों को परमेश्वर प्यार करता है, आप सबों को परमेश्वर आशीष करता है। और आप सबों को परमेश्वर आपके कारोबार में आशीषित करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने बना के छोड़ा नहीं, बगैर इंसान को बनाकर उनके मुसीबतों को सामने करने के लिए उनके लिए आशीष का सोता बनाया, मगर वो आशीष को हम समझ नहीं पाते। एक ही ड्रामा कहानी, एक ही कहानी, आदम हवा को आशीष किया और दूसरी बात किसी को आशीष नहीं किया। आज आपके लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज मैं बहुत आशीष पा, बीते रात में परमेश्वर से में थके हुए थे, आशीष पा रहे थे। परमेश्वर गुड़ बातें परमेश्वर बता रहा था मुझे। मैं कोई पुस्तक नहीं पढ़ता हूं, मैं टीवी इंटरनेट भी नहीं देखता हूं। कभी कदार टाइट होते जी टीवी थोड़ा खोल दिया तो खोल दे, वर्शिप देखते, उसके बाद और कुछ नहीं। मैं नोट भी नहीं करता हूं। हमारा जिंदगी को परमेश्वर चलाता है और चलाएगा यदि हम ईमानदार रहेंगे तब। अगर हम बेईमानी करेंगे तो परमेश्वर मुझे गिरा देगा, हट जाएगा साथ से। शुक्री भाई बहनों, शब्द से बनाया प्रकार सृष्टि, उत्पत्ति 2:3 में आशीष किया, पवित्र किया और विश्राम दिन कहा। दिशा आदम हवा को बनाकर आशीष किया। अब्राहम को कहा मैं तेरे वंश को आशीष करूंगा, तेरे वंश के द्वारा तेरे कारण समाज के सारे सृष्टि के लोग आशीष पाएंगे। आज हम सब आशीष पाए लोग हैं। हम यीशु को जानते नहीं जानते, यीशु मसीह हमें आपको आशीष किया हुआ है। उस पवित्र परमेश्वर का आशीष का थोड़ा आज ध्यान से देखना है। चौथी पंचवी छठवीं नंबर, इसहाक को जो आशीष किया उसके खेती बाड़ी में। परमेश्वर ने इंसान को बना के छोड़े, बहुत बड़े आशीष बात किया। अब महत्वपूर्ण बातें, आश्चर्य काम, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 8 पद, द्वितीय विवरण 28 अध्याय 8 पद, যেটা প্রভু মানুষকে সৃষ্টি করে সেটি ছাড়েননি, আশীর্বাদ করেছিল। আদি পুস্তক আমরা 26-3 और 26-12 पद পড়ছিলাম।
সেখানে সেই ইসাহাককে আশীর্বাদ করেছিল তার খেতি বাড়ির মধ্যে। আর আজকে তোমাদের আমাদেরকে সকলকে প্রভু আশীর্বাদ করেছেন। গুরুত্ব জিনিস। ওকে, 8। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा, इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। आमीन। आमीन। महत्वपूर्ण बातें। आदम हवा को आशीष किया, अब्राहम को आशीष किया, अब्राहम को राज का आशीष का पिता बनाया, इब्राहिम के बेटा इसहाक को परमेश्वर ने आशीष किया। और दूसरी बात कहता है कि तू जिस काम में हाथ लगाएगा उस कामों में नहीं सुन पा रहे भाई, क्या हुआ? ठंडा लग रहा है? ओए, जिस काम में तुम हाथ लगाओगे, अरे यार क्या खिचड़ी होगा, नहीं सुन पा रहे हम। इधर के लोग तो क्या रूठी सैया है, मनाए एक गाना, रूठी सैया मनाऊं कैसे, मिठाई रसगुल्ला नहीं, केक तो हर दिन का खत्म हो गया। मुंह खोलिए ना। तुम जिस काम में भी हाथ लगाओगे उस काम में तुम्हें परमेश्वर हालेलुया। आप कहे प्रभु ये मेरा हाथ नहीं है, तू बनाया है, और ये हाथों को कामों में तूने आशीष किया है, इस हाथों के कामों में तूने आशीष किया है। हम तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दे। बहुत समय हम लोग परमेश्वर को एक उद्देश्य को हम नहीं समझ पाते। परमेश्वर जो हमारा जीवित यीशु है, हम कैसे यीशु के साथ रहे। मैं बेसी बाइबल पढ़ता हूं, अपना लाइफ का बाइबल बना दिया हूं। परमेश्वर हमारे आपकी जिंदगी में, प्रिय भाई बहनों, कभी निराश मत होना। आज महत्वपूर्ण दिन आप लोग के लिए, हमारे लिए है। कभी एक ही बात को लेकर सोचे, प्रभु हमारे पाप को, गुनाह को क्षमा किया, मैं ये क्या वो क्या। एक ही रिकॉर्ड मत चलाओ। परमेश्वर को गहराई में जाओ, गहराई में डूबो, तब परमेश्वर को जान पाओगे तुम कि परमेश्वर की कितना गहराई, कितना ऊंचाई, कितना लंबाई, कितना चौड़ाई है। परमेश्वर का आशीष है, उसने शुरू से आशीष देकर रखा। परमेश्वर शुरू थी कि प्रभु हमारे के आशीर्वाद दिए चिन्ह। यदि तू मेरे बातों को मानेगा, मेरी सेवा करेगा, तो ये सारे आशीष तुझ पर रहेगा। तू धन्य होगा खेत में, धन्य होगा तेरी संतान, धन्य होगा तेरी गाय बैलादी पुस्तक, धन्य होगा तू बाहर जाते समय, धन्य होगा तू भीतर आते समय। आज जिस कामों पर तुम हाथ लगाएगा उस कामों में परमेश्वर तेरी सफलता देगा, उन्नति देगा, आशीषित करेगा। हम लोग सोचते कि इस साल में घर नहीं बना पाया, इस साल में कारोबार नहीं कर पाया, ये साल मेरे बच्चे का पढ़ाई ठीक नहीं हुआ, ये साल मेरे बाल बच्चे को उन्नति नहीं हुआ। अरे अपने तुम उन्नति कर लो तो तुम्हारा बाल बच्चा उन्नति हो जाएगा। तुम अगर बदल गए तो तुम्हारा बाल बच्चा भी बदल जाएगा, क्योंकि तुमको परमेश्वर आशीषित किया है, तुम्हारे वंश को आशीष किया है। आज हम आशीष का भागीदार नहीं होते प्रिय भाई बहनों, आशीष का भागीदार नहीं होते। हम उस आशीष वाला परमेश्वर को हम समझ नहीं पाते कि परमेश्वर हमें आपको कितना प्यार करता, पूरे वर्ल्ड के लोगों को प्यार करता है, हर भाषा भाषी लोगों को प्यार करता है। प्रभु का आशीष पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पर चारों दिशा में परमेश्वर का आशीष आज बह रहा है। अगर आशीष नहीं होता 2023 में वर्ल्ड डिक्लेयर होता। परमेश्वर ने वर्ल्ड डिक्लेयर मसीह लोगों के प्रार्थना से रोक दिया है, क्योंकि मसीह लोग हाथ उठा देंगे, परमेश्वर आशीष कर तो आशीष करेगा। दीपावली को जाके मैं बोला, प्रभु तेरा दास यहाँ खड़ा है, ये जमीन पर क्लेम कर रहा है कि यहाँ एक भवन हो, और हो गया भवन, हो गया भवन। आज हम मसीह, साधारण मसीह नहीं बनना प्रिय भाई बहनों। 2015 में पहला जो हमारे रानी राष्ट्रपति में हमें नहीं मिल रहा था परमिशन, हमने हुआ जाकर पांव धर दिया। ये जगह
प्रभु ये जगह मेरा है, तू कहा है जहां तू खड़ा रहेगा मैं तुझे दे दूंगा, और ये जगह तेरी महिमा के लिए, यहाँ रानी राज मंदिर में तेरा महिमा होना है बड़ा दिन का। और परमेश्वर हमें मिल गया। नेक्स्ट डे हम लोग वहाँ सेवा शुरू किया। 2015 से आज 23 तक सेवा हो रहा है। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हम बहुत समय प्रिय भाई परमेश्वर का आशीष को हम खो देते, समझ नहीं पाते हैं। ये साल मिला नहीं, वो साल मिलेगा ऐसे। अरे हमारा परमेश्वर अगला साल नहीं, रोज आपको प्यार करता है, रोज आपके साथ रहता है, रोज आपको आशीष किया है, रोज आपको कोहरे से काला बनाता, काला से गोरा बनाता है। भाई लोग को देखते सुबह ऐसा और शाम को शादी में आ रहे झका झक सादा हो के, मैं तो बोलते भाई कौन है रे भाई, लाजर बोलते वही सिस्टर थे। अरे इतना गोरा कहाँ से आई थी, एक दिन में कैसे गोरा हो गया। कभी कभी चंदन का तेल का लकड़ी लगाती है अपने ससुर को, उसको भी सादा कर दी। हमने बोले भाई ये लोग इन तो फेल हो गया रे भाई। आए रे क्या क्या हो रहा, बहू लोग क्या कर रही। कोई बहू सास बहू को झगड़ा होता और कोई बहू ससुरे को सजा देती है, काला से गोरा कर देती है। ये भी आशीष का सोता है। हालेलुया हालेलुया। महत्वपूर्ण बातें आप उस बातों को अपने लिख के रखना, घर में पढ़ना। जो परमेश्वर ने नर नारी को बना के आशीष किया, सूर्य चंद्रमा तारागण को आशीष नहीं किया। परमेश्वर का उद्देश्य बनाया है सृष्टि को प्रकाश के लिए। गाछ ऑक्सीजन हवा बतास के लिए बनाया है। पृथ्वी को सुंदर बनाया है, मगर आदम हवा को आशीष किया है। आदम हवा को आशीष किया है। आपके वंश को परमेश्वर ने आशीष किया है। इसे हम लोग देख रहे थे कि इसहाक उसी साल में बोया और फल लाया, उसके खेती में परमेश्वर आशीष किया। दूसरी बात हम व्यवस्था 28 के 8 में पढ़ रहे थे कि जिस काम में तुम हाथ लगाओगे वो काम में आशीषित करेगा। 12 पद 28 अध्याय 12 पद, द्वितीय विवरण 28 अध्याय 12 पद। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुत री जाति को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। आमीन। ताली बजा के परमेश्वर को ताली बजा कर धन्यवाद दिए परमेश्वर को। ये आपका लिए, पूरे वर्ल्ड के भाई बहनों के लिए। हो सकता है प्रिय भाई बहन आप जो टीवी देखेंगे, यूट्यूब में हर संडे को मैसेज को रीति छोड़ना है। हम कुछ नहीं सुनेगा, हर संडे का मैसेज यूट्यूब में जाना है। ये जो आशीष जितने लोग भी देंगे पूरा पश्चिम उत्तर दिन सारे लोगों का आशीष के लिए, हर घर परिवार के आशीष के लिए। मसीह हो गैर मसीह हो कोई फर्क नहीं। यीशु क्रिश्चियन का परमेश्वर नहीं, सबको बनाया है, सबको आशीषित कर रहा। आज 2024 में परमेश्वर हर घर परिवार में आशीषित करने जा रहा है। आपके बाल बच्चे को आशीष करने जा रहा है। आपके बाल बच्चे का पढ़ाई में उन्नति में आशीष करने जा रहा है। आपके नौकरी में आशीष करने चाह रहा है। आपके बिजनेस कारोबार में परमेश्वर आशीष देना चाह रहा है। आज परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, किसी से धार लेना ना पड़ेगा। परमेश्वर हमें आपको बनाया है धार लेने के लिए नहीं, बुराई करने के लिए नहीं, परमेश्वर को प्यार करने के लिए, उनके सारे वचन को प्यार करने के लिए। आदि वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यही वचन देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया, मगर कितने लोगों ने अंधकार को प्रिय जाना, यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया।
आज यीशु प्रभु हमें आपको प्यार करता है। प्रिय भाई बहनों, उस परमेश्वर का प्यार और आशीष को सोचो कि परमेश्वर का आशीष जो एक दिन के लिए नहीं, सिर्फ आदम हवा का नहीं दिया, आपके खेती बाड़ी कार बार में परमेश्वर आशीषित किया है। हम उस आशीष के परमेश्वर को प्यार करे। प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूं, प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूं। लॉर्ड आई लव यू डैडी, आई लव यू डैडी, आई लव यू डैडी। जब आप कहेंगे प्रभु আমি তোমাকে ভালোবাসি প্রভু, আমি তোমাকে ভালোবাসি প্রভু, তখন যিশু সব কিছু আমাদেরকে ভালোবাসবে, सब কিছু ভালোবাসবে। प्रभु मैं तुझको प्यार करता हूं प्रभु, मैं तुझको प्यार करता हूं। मैं धन संपत्ति को प्यार नहीं करता हूं, मैं अपने नामों को ऊंचा करने को मैं प्यार नहीं करता हूं, मैं अपने सम्मान को प्यार नहीं करता हूं, मैं अपने सम्मान को नीचे करना चाहता हूं, तुझे ऊंचा करना चाहता हूं प्रभु। तेरे आशीषों को मैं ऊंचा करना चाहता हूं, जो तूने मुझे आपको आशीष किया प्रभु, उन आशीषों को मैं लेकर ऊंचा होना चाहता हूं, उन आशीषों में चलना चाहता हूं, वो आशीष में बढ़ना चाहता हूं, वो आशीष को लेकर बांटना चाहता हूं प्रभु। तू दयालु है प्रभु, तू दया का सागर है परमेश्वर। आज प्रिय भाई बहनों, ईश्वर प्रभु बहुत प्यार करता है। आज मैं बहुत आशीष पाया वचन से। मैं पढ़ता हूँ हर दिन, हमारी बाइबल ही हमारे जीवन के साथी है, बाइबल ही मेरे जीवन के साथी है। मैं जब पढ़ता हूँ तो रोता हूँ, प्रभु मुझे समझा वचन को, क्योंकि अब जितना पुस्तक पढ़ेंगे उतना दिमाग आपका गोला हो जाएगा। सारी पुस्तक यही वचन से होता है। किसी किसी लेखक के अपने विचार धारणा वहाँ दे देते हैं, मगर यह जीवित पुस्तक जो इसमें किसी के विचार धारणा नहीं है, ये पवित्र आत्मा का बल शक्ति सामर्थ खुशहाली जिंदगी को बदलता है, आपके सोच को बदलता है, आपके विचार को बदलता है, आपके उद्देश्य को बदलता है, आपका प्रचार के आदतों को बदल देता है परमेश्वर। ये है प्रिय भाई बहनों, यही है परमेश्वर जो हमारे आपकी जिंदगी में रखा है। महत्वपूर्ण बातें। नीति वचन 10 अध्याय 5 पद, हितोपदेशक 10 अध्याय 22 पद, प्रभात चैप्टर 10 वर्स 22। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता। दुख नहीं मिलाता, वैसे ना मिलता क्या दुख? धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हाँ देखा, ये खट्टा पानी को पकड़ लिया अभी हम, ये हमको शॉर्टकट मार के कर रहा था। देखा, अगर हम बाइबल नहीं पढ़ते तो निकल जाता ये। इनके माँ 24 में इनके समाचार, न्यू पीस, न्यू कोट पैंट, न्यू इनके माँ साड़ी, अरे दोनों हाँ चमक रहा है रे भाई। ओके, गॉड ब्लेस। और प्रभु उन लोग को आशीष करे, उन लोग के बाल बच्चों के लाइफ में आशीष करे, उन लोग खाए, हम लोग को भी खिलाए, प्लेन में उठे हमको प्लेन में लेके चले। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई, महत्वपूर्ण बातें ध्यान से सुनना। ओके, तीन से पढ़ेंगे। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। धन परमेश्वर के आशीष से मिलता है। उसके बाद, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। उसके साथ दुख नहीं मिलाता। महत्वपूर्ण बातें। आज लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते, सप्ताह सप्ताह मेहनत करते, महीना महीना मेहनत करते, साल साल भर मेहनत करते हैं। महत्वपूर्ण बात है जो परमेश्वर आज ध्यान से आप समझे, ये आशीष आपके लिए है, सबके लिए है।
हमारे लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए आशीष। गैर मसीह जो भी आप टीवी में देखेंगे, यूट्यूब में देखेंगे, आपको परमेश्वर प्यार करता। आप एक ही बात कहना, प्रभु यीशु मुझे बनाया है, मुझे आशीष किया। जहां भी देखेंगे आप, आपको आशीष मिलेगा। और अपने घर में जाके कहना, प्रभु तू मुझे आशीष किया, ये मेरा घर मेरा नहीं तेरा घर है, ये आशीष का घर हो। तो 2024 में आपका घरों में आशीष पहुंच जाएगा, आशीष पहुंचेगा आपके घर में। धन परमेश्वर की आशीष से मिलता है और उसके साथ दुख नहीं मिलाता, उसके साथ दुख। आज हम काफी लोगों को हर घर में देख रहे, घर घर की कहानी है। लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, कमा के पैसा लाते हैं, पसीना निकाल कर घर में आकर देखते हैं तो बीमारी की छाया घर में पड़ी हुई है। वो पैसा लाए, लेकर डॉक्टर को देके चला है। हर सप्ताह, हर महीना, हर दिन डॉक्टर को अपना चेहरा दिखाना है। क्या कारण है? क्यों? परमेश्वर का आशीष धन लाता है, उसके साथ दुख नहीं देता परमेश्वर। दुख हम गिनते हैं, हम पैसे को प्यार करते, परमेश्वर को अलग कर देते हैं। चर्च में नहीं आकर घूमते, सब जगह जाते हैं, संडे कोई बहाना लगा देते हैं। कमर टेढ़ा हो गया, पेट ढीला हो गया है, लूज मौसम हो गया है। अगर उसी दिन लूज मौसम हो रहा है भाइयों को, पहले तो बच्चे लोग को हागिस मिलता था, अभी बुढ़ा लोग को हागिस मिल गया है। अब भाई लोग को हागिस हो रहा है, हागिस पहन के भी खाने चल जाएंगे। मैं बहुत पेट खराब था ना, मगर आपने मुझे बुलाए थे साउथ इंडियन भाई, क्योंकि बहुत खाना बनाएगा, इसलिए आपके पास आ गया। नहीं बताया, गुप्त बातों को नहीं बनाया कि मैं एक तो एक्स्ट्रा कुछ पहन के आया हूँ, है ना। अरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को छोटा मत समझो ना, उसके प्यार को छोटा मत समझो, उनके आशीष को खेला मत करो। वो आशीष दिया, आप सबको आशीष दिया है प्रिय भाई बहनों। यिर्मयाह को बोला, यिर्मयाह जब तू अपनी माँ के गर्भ में था, तब से मेरा नजर तुझ पर था कि तुझको मैंने आशीष किया। शिमशान को भी परमेश्वर बोला कि मैं माँ के गर्भ से इसको मेरा नबी चुन लिया हूँ, उनको आशीष किया हूँ। यूहन्ना के भी बोला कि माँ के गर्भ मैंने चुना हूँ, ये पवित्र व्यक्ति यूहन्ना जो जन्म होगा, जकरिया का बेटा, उसको भी आशीषित किया है। और मुझे भी आपको मेरे माँ के गर्भ से चुनकर आशीष किया है। तो हम अपने देश को भी आशीष करें, अपने रिश्तेदारों को आशीष करें, अपने परिवारों को आशीष करें, अपने पड़ोसी को भी हम आशीष करें। प्रिय भाई बहनों, हम बहुत समय लड़खड़ा जाते प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के आशीष को समझते नहीं। जो 365 दिन परमेश्वर हमें आपको आशीष किया है, 365 दिन परमेश्वर हमें आपको आशीष में चलाना चाहता है। कहता है तुझे किसी से धार लेना ना पड़ेगा, तुझे भूखा सोने नहीं पड़ेगा, फटा कपड़ा नहीं पहनने पड़ेगा, क्योंकि धार लेगा नहीं तो दूसरे को धार देगा, क्योंकि तुझ पर तेरे वंश पर मेरा आशीष बना रहेगा। हालेलुया। तालियां बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज प्रिय भाई बहन, परमेश्वर हमारे आपको प्यार करता है। उस परमेश्वर को हम प्यार करें, उस परमेश्वर के कामों को प्यार करें, परमेश्वर की आवाजों को प्यार करें कि प्रभु तुम मुझसे कहा, मैं तेरी बातों को सुनना चाहता हूं। इससे प्रभु हमें आपको प्यार करता। प्रिय भाई बहनों, सोचिए परमेश्वर ने कितना आशीषित किया हम लोगों को। खेती बाड़ी, कारोबार में, जिस काम में हाथ लगाओगे, कह रहा है कि परमेश्वर के आशीष ही धन संपत्ति लाता है। अगर आपके पास परमेश्वर का आशीष नहीं है तो आपका मेहनत बेकार हो जाता है, परिश्रम बेकार हो जाता है। इसी प्रभु कहता है, ये सारे परिश्रम करने वालों और बोझ से, मुसीबत से, कर्ज में डूबे लोग,
निराश हताश अकेलेपन के लोग मेरे चरणों में आ जाओ। मैं तुम्हें आशीष के साथ में विश्राम दूंगा। मैं तुम्हारे घरों में आशीष करूंगा, तुम्हारे कारोबार में आशीष करूंगा, तुम्हारे बच्चे के लड़का लड़कियों का भविष्य में मैं आशीष करूंगा। मैं आशीष का परमेश्वर हूं, मैं आशीष देने वाला परमेश्वर हूं। हमारा परमेश्वर को लड्डू नारियल खस्सी बलिदान नहीं चाहिए। आपका स्वार्थ को बलिदान कर दीजिए, आपके गलत सोच को बलिदान कर दीजिए, गंदगी बातों को बलिदान कर हटा दीजिए। परमेश्वर का आशीष आपसे कोई भी छीन नहीं सकता है। नोबडी। जिसे যে আমাদেরকে আশীর্বাদ করেছেন কেউ কাটতে পারবে না, কেউ কাটতে পারবে না। যে কোনো কাজের মধ্যে তুমি হাত লাগাবে সেইখানে তোমাকে আশীর্বাদ করবে, তোমাকে ভিক্ষে চাইতে হবে না। আকাশ খুলে প্রভু তোমাদের ছাতের উপর তোমার কারবার মধ্যে চাষবাসের মধ্যে আকাশ থেকে আশীর্বাদ দেবে, গোলা বাড়ি আশীর্বাদ দেবে। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रिय भाई बहन, परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर के उद्देश्य को जानो। हम चाहते अपने को बदलना। जब तक ला वचन को, बहुत समय क्या होता है, हम लोग यहाँ से वचन सुनकर बाहर जाते हैं ना, दूसरे बातों में फंस जाते हैं हम। उसके बुराई उसका ही करते, ये वचन आपको श्राप दे देता है कि परमेश्वर बोलता है मेरे वचन को तूने आदर नहीं किया। बाहर निकल के मेरे मंडली के भाई बहनों को दास के विरुद्ध तुल्य बात कर रहा है। नहीं प्रिय बहनों भाइयों, दास आप लोग के लिए रोता है। आप कुछ करें, हमारे लिए कोई फर्क नहीं है, मगर मैं यही करूँगा, आपके भविष्य के लिए एक फोटा आंसू प्रभु को दूंगा कि मेरे बेटा बेटी इनको आशीष कर। प्रभु ने क्या कहा था क्रूस पर? हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते। मैं प्रभु नहीं हो सकता हूँ, मगर मैं यही कर सकता हूँ, प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते किसके विरुद्ध में बात कर रहे हैं। तेरे अभिषेक के विरुद्ध बात कर, इसको नहीं मालूम, प्रभु क्षमा कर दे। ये दास इसलिए आज इस जगह पर है, इस जगह पर है, और अभी भी मैं आय 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 आय। हालेलुया। प्रिय बहनों, अगर आप यीशु को प्यार करेंगे तो आपका पति आपको प्यार करेगा। अगर बहन यीशु को प्यार करेंगे तो बहन का पति भी पत्नी को प्यार करेगा। अगर अपने घर में बाल बच्चे के प्रति ईमानदार होंगे तो आपको ईमानदार का आशीष मिलेगा। आशीष परमेश्वर किसको देता है? नीति वचन 28:20 हितोपदेशक 28:20 सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। आमीन। बांग्ला বিশ্বস্ত লোক অনেক আশীর্বাদ পাইবে, কিন্তু যে ধনবান হইবার জন্য তাড়াতাড়ি করে সে অদণ্ডিত থাকিবে না। আমেন। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी न पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी न पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे आंसू में मेरी माँ बन गया, कर्जों में कष्टों में मेरा
पिता बनकर यहाँ, दुखों में आंसू में मेरी माँ बनकर यहाँ, कर्जों में कष्टों में मेरे पिता बनकर यहाँ, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बनकर मौत की वादियों में मेरा जीवन बनकर यहाँ, अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बनकर यहाँ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बनकर यहाँ, पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे पास ही रहना प्रभु, प्रभु मुझे चंगाई देना प्रभु, मेरे बाल बच्चे को नौकरी देना प्रभु, मगर मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। सिर्फ हमने मांगना सीखा, लेना सीखा है, मगर अपने जिंदगी को समर्पित करना नहीं सीखा है। बाइबल कहता सच्चे मनुष्य पर बहुत सारे आशीष होते हैं, बहुत सारे आशीष। आप पीछे पीछे बोले जोर से। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। कितने आशीर्वाद? बहुत आशीर्वाद। जो गंजा है उसको भी आशीष है, और जिसके सर में चूल उसको भी आशीष है। हालेलुया। आप प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों, अपने को गरीब मत सोचना, अपने को गरीब मत सोचो तुम लोग। अगर तुम सोचते कि मैं गरीब हूं, आप यीशु को नहीं जानते, आप खेला करने आते हैं। आज यीशु आपको बता रहा है कि मैं शुरू से तुझे आशीष देकर आया हूं। आप आशीष पाए धनी व्यक्ति है। मत सोचें कि आप गरीब है, आपके पास में गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, बिल्डिंग नहीं, कोई फर्क नहीं, कुछ ना हो, मगर यीशु आपके साथ है। यीशु का आशीष आपके साथ है, यीशु के आशीष आपके साथ है। आप धनी व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु मुझे यहां तक आज रखा है। बाइबल आज हमें स्पष्ट रूप से हमें बताना चाहता है कि सच्चे मनुष्य पर बहुत सारे आशीष रहते हैं। सारे आशीष का मतलब है, जब मैं यीशु को नहीं जानते थे
टर्किशोर जाते थे पानी लेकर आशीष के लिए, पानी डालते थे लिंग में, बगल में गड्ढा वहां से खोद के लेके चलाते, वही आशीष होता था, वही बर्बादी। हनुमान की पूजा लंगोट पहन के 7 बार बैठ जाते थे, अखाड़ा में कुश्ती लड़ते थे। हेलो तेलुगु भाई, लड़ा कुश्ती कभी? नहीं लड़ा, छोड़ दो, उसको तो पटक जाते, छोड़ दो। देवी देवता की पूजा किया, तांत्रिक ओझा घुनी के पास भी जाते थे, गंगा भी नहाते थे, सब कुछ तो किया, मगर कोई नहीं तो आशीष नहीं देख पिला। पर भाई बहनों, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं यीशु का बेटा हूं, यीशु का बेटा हूं, यीशु का बेटा हूं। क्रिस्ट कोई धर्म नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव, गॉड इज लव, सबको प्यार करता, पूरे वर्ल्ड के लोगों को। आप नहीं जान के गांच को भगवान कहते, गांच भगवान नहीं है, वो आपको आशीष नहीं देगा। आज यीशु आपको आशीष दे रहा है, आपको बताना चाहता है कि तू मेरा बेटा बेटी, तू मुझे नहीं जानता, मैं तुझे जानता हूं और मैं तुझे प्यार भी करता हूं। प्रिय भाई, लाल सादा बॉर्डर वाला गंजेला, यीशु आपको प्यार करता है, यीशु आपको प्यार करता है। जीसस लव यू ब्रदर, जीसस लव यू। आज सब आशीष पा गए। आप कह देंगे कि आज सृष्टि का जो आशीष करने वाला परमेश्वर है, जो हमारा सनातन परमेश्वर यीशु है, वो मेरे साथ है, मेरे साथ कोई भी ना हो, मेरा आशीष का परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर मसीह हम सबों को प्यार करने वाला परमेश्वर है। इसे बाइबल स्पष्ट करती है कि सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीष होता है। सत्य मनुष्य पर विभिन्न अनेक प्रकार प्रभु आशीर्वाद देয়, যেটা গণনা করা যায় না, যায় না, যেটা দীপালি দরকার ছিল প্রভু দিয়েছে ওকে। হালেলুয়া। ভাবতো কি করবে, কালকে আসবে মিস্ত্রি, কিছু দাও তাহলে কাজ এগোবো, কিন্তু ও মিস্ত্রি অপেক্ষা নই। যিশু তোমার অপেক্ষা করছে, মেরা মেয়ে তোমাকে আমি আশীষ করেছি, তুমি লজ্জিত হবে না, তোমার দুর্বল হবে না, তোমার खेती बाड़ी सब कुछ में আমি आशीष করেছি। प्रभु यीशु मसीह हमें आपको प्यार करता। प्रिय भाई बहनों, हम उस परमेश्वर की सेवा करते, महत्वपूर्ण जो बातें अभी हम सीख रहे थे, और महत्वपूर्ण बातें जो हम परमेश्वर मुझसे कह रहा है, जो आपको मैं कह रहा हूं। भजन संगीत 112 अध्याय का 2 पद, गीत संहिता 112 अध्याय 2 पद। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। आमीन। किसके लोग? सीधे लोगों के संतान, सच्चे लोगों पर आशीष होती है। आज आप सीधे परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे। प्रभु ने कहा, मैं सत्य में मार्ग में जीवन हूं। अगर सत्य के मार्ग में चलेंगे तो आपके बाल बच्चे सत्य के मार्ग में चलेगा, क्योंकि परमेश्वर सत्य लोगों को आशीषित किया है। हम आशीष पाए। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें आपको आशीषित किया है। आपका पैसा आप खाएंगे, डॉक्टर नहीं खाएगा। अगर आप ईमानदार सच्चे रहेंगे तब। प्रभु ने कहा, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। अपने जिंदगी को प्रभु को दे देंगे तो परमेश्वर आपको सब कुछ दे दिया है। आज क्या करेंगे आप लोग? बोलिए। पहली बात, हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं, तू मुझे आशीष किया, बहुत आशीष किया है। आज मैं देख पाया तेरे आशीष को। दूसरी बात, हे शैतान, तू मेरे आशीष को छिपा रखा था, मुझे समझ ही नहीं दिया। आज तू मेरे अंदर से चला जा, और आज मैं यीशु के नाम से अपने आशीष को छीन लेता हूं। हालेलुया। ये आशीष को मैं ले लेता हूं, और आज मैं अपने बाल बच्चे को आशीष कर रहा हूं। मेरे घर में मैं आशीष करूंगा, मेरे कारोबार में आशीष करूंगा, मेरे नौकरी चाकरी में मैं आशीष करूंगा। अगर नौकरी करते हैं तो ड्यूटी में जाने के बाद चेयर में बोलिए, प्रभु ये चेयर को तू आशीष किया है, इस चेयर को आशीष कर।
आपको शेयर का आशीष उन्नति देगा आपको परमेश्वर। 2024 में कुछ भाइयों को नौकरी में परमिशन देने जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर परमिशन देने जा रहा है। कुछ भाई बहनों जो घर बनाना चाहते हैं, पैसे नहीं है, 24 में आपका घर बनने जा रहा है। परमेश्वर बनाने जा रहा है 24 में। परमेश्वर आप लोगों को प्यार करता है। परमेश्वर वो जीवित है, प्रभु यीशु मसीह। इसलिए बाइबल कहता है मैं तेरे सच्चे मनुष्य का वंश आशीष पाता है। जो परमेश्वर को डरते हैं उनको परमेश्वर आशीषित करता है। महत्वपूर्ण बात 133 अध्याय का 3 पद। गीत 133 अध्याय 3 पद। यह हेर्मोन के उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। हालेलुया। यो परमेश्वर ने वही तो सदा का जीवन की आशीष ठहराया। आदान के बगीचे से लेकर सृष्टि लेकर प्रकाशित तक ले, आदि और अंत, अल्फा ओमेगा आशीष दिया है प्रिय भाई बहन आपको। फिर पढ़ लेंगे एक बार, आप लोग पीछे पीछे बोलिए। यह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। आमीन। जीवन की सदा की आशीष ठहराई है। बांग्ला है। তাহা হমনে শিশিরের সদৃশ্য, যাহা সিহন পর্বততে খড়িয়া পড়ে। কারণ তথায় সদাপ্রভু আশীর্বাদ আজ্ঞা করিলেন, অনন্তকালের জন্য জীবন আজ্ঞা করিলেন। আমেন। अनंत काल जीवन के आशीर्वाद। आमीन। हालेलुया। मरण की आशीष परमेश्वर ने नहीं किया। कहता है इज़िकियल 18 में कि कोई मरे तो उसमें परश नहीं हो। हर इंसान जीवन पाए, बहुत आश की जीवन पाए। हर इंसान आशीष पाए, बहुत आश की आशीष पाए। जो परमेश्वर देता है उसमें मिक्स नहीं होता है। उन आशीष जो परमेश्वर हमें दिया है देता रहेगा। वो जीवन की आशीष दिया प्रिय भाई बहनों। हम बहुत समय देखते प्रिय भाई बहन, हमारे हम लोग का लाइफ में आज मैं भी बहुत खुशी हूं अंदर से। परमेश्वर मुझे भी वही आशीष दे रहा है। आप आशीष पा रहे हैं, मैं भी पा रहा हूं आशीष, क्योंकि यीशु प्रभु हमें आपको बहुत प्यार करता है। यीशु प्रभु हमें आपको प्यार करता है। महत्वपूर्ण बातें इंसान को बना के परमेश्वर के आखिर पहले से सब कुछ परमेश्वर को मालूम था कि इंसान कितना कमजोर बन सकता है, कितना स्वार्थी बन सकता है, कितने अपने मर्जी से चलने वाला बन सकता है। ये सारे बीमारी परमेश्वर ने देख के इंसान को नहीं बनाया था। इस्राएल के सामने में रखा आशीष, श्राप, जीवन और मृत्यु। आज हमारे आपके पास में परमेश्वर ने आशीष रखा है। अगर उस मार्ग को चलें तो, जीवन के मार्ग में चलें तो आशीष के साथ हम सदा रहेंगे। क्या कारण है? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके शरीर में कोई बीमारियां नहीं है। क्या कारण है? जो आपके पैसा आप खा नहीं पा रहे, टाटे बिल्ले के पास बहुत पैसा है मगर उसको बोल दिया शुगर है, मिठाई नहीं खा पा रहा है। बड़े बड़े आर्टिस्ट है, बड़े बड़े आर्टिस्टों को देखो, शुगर के बीमारी, प्रेशर के बीमारी लगे हुआ है। कारण क्या है? क्या बात है? परमेश्वर क्या हमें आशीष नहीं दिया? क्या लोगों, वर्ल्ड के लोगों को परमेश्वर आशीष नहीं किया? गरीब, अमीर, धनी सबको परमेश्वर ने आशीष किया। प्रिय भाई बहनों, आशीष किसके लिए? पूरे वर्ल्ड के लिए, हर समाज के लिए, हर जाति के लिए, हर भाषा भाषी लोगों के लिए है। मगर बाइबल हमें क्या सिखाता है?
निर्गमन के पत्री 23 अध्याय 25 पद, हितोपदेशक 23 अध्याय 25 पद, यात्रा पुस्तक। तू अपने परमेश्वर, आप पीछे पीछे बोलेंगे, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे लिए अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। आमीन। परमेश्वर तुम्हारे अन्न जल पर, भोजन पर और तुम्हारे बीच से रोग बीमारी दूर करेगा। आप सोचते क्या प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म है? नहीं, गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम है। आगे तुम परमेश्वर की बातों को सुनोगे, मानोगे, चलोगे तो परमेश्वर तुम्हारी अन्न जल पर, भोजन पर आशीष करेगा। बीमारी नहीं दिया परमेश्वर ने, बीमारी दे के नहीं बनाया इंसान को, वो आशीष दे के बनाया। और वो आशीष का हम खो देते हैं अपने व्यवहार के कारण, अपने सोच के कारण, उस पवित्रता से दूर होके यीशु के छोड़कर पीछे दूसरे के भाग जाते हैं। आज आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या सोच रहे, क्या करेंगे, आपको ऊपर है। यीशु प्रभु सारे आशीष दिया अपने भाई बहनों। आपको कोई श्राप नहीं दे सकता, आप आशीष पाए लोग हैं। प्रभु আমাদেরকে আশীর্বাদ দিয়েছেন, আমরা অভিশাপ পাইনি। যদি তুমি তার কথা শুনে যদি তুমি তার ইচ্ছা অনুসার চলো, তাহলে যিশু তোমার अन्न जल पर हालेलुया आशीर्वाद করেছে। अन्न जल का मतलब है रोक्षी नहीं। लामा भाई हमको देखता है, बहुत गौर से समझ जाता हो। आशीष खाने से कैंसर डाउन, पान पराग खाने से डाउन, पवित्र आशीष नहीं रहेगा। खैनी बीड़ी सिगरेट पीने से आपको आशीष नहीं रहेगा। परमेश्वर का आशीष पवित्र है, वो खेला का नहीं है। ईश्वर प्रभु खेला का परमेश्वर नहीं है, वो पवित्र है। कहता है मैं पवित्र, तुम भी पवित्र बनो और मेरे आशीष तुम्हारे पवित्र, मेरे आशीष के पवित्रता के आशीष तुम्हारे जिंदगी को बदल सकता है। आज उस आशीष को हम सोचते नहीं प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर ने कितने सारे आशीष हमारे लिए भरा हुआ है। प्रिय, हमारे वंश को नौकरी चाकरी में, खेती बाड़ी में, कारोबार में, खाने से भोजन में हम सोचते नहीं हैं। हम पहले ये ब्रेकफास्ट करते हैं, मैं पहले लंच ये करता हूं, मैं डिनर भी करता हूं। ये हमारा भोजन है, ये हमारी जिंदगी को बदल रखा है। आज मैं कुछ घाटता नहीं हूं, इसको बेसी मैं घाटता रहता हूं। घुटने बैठ के पूछता हूं, प्रभु इसका मतलब क्या है बाबा, क्या है, तू क्या कहने चाहता मुझसे, मुझे बता। प्रभु बताता है, मैं आपको बताता हूं। आमीन, हालेलुया। प्रभु मुझे देता है, मैं आपको देता हूं। इस सारे बाइबल में सारे आशीष लिखे हुए भाई बहनों। क्या अभी भी आप लोग को कोई डाउट है आशीष के विषय में? सब कुछ में आशीष किया, सब कुछ में आशीष किया, क्योंकि हम आशीष पाए लोग हैं। सारे वचन से भरा हुआ भजन संगीत 100 अध्याय का 4 पद में परमेश्वर ने आशीष किया हुआ है। इसी सारे आशीष का श्रोता परमेश्वर है। गिनती के पति 6 अध्याय 24 से परमेश्वर ने आशीष किया हमें आपको। गुणों 6 अध्याय 24 पद में प्रभु हमें के आशीर्वाद करेছেন। पढ़ लो। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख
तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। शांति दे। आप पीछे पीछे पढ़ेंगे। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आप बगल वाला को बोलिए, प्रभु से आपको यीशु आशीष करे, आपको आपकी रक्षा करे, आपके भविष्य की रक्षा करे, आपके बाल बच्चे की रक्षा करे। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु ने सारे आशीष ही दिया है। लास्ट पद 23 अध्याय गिनती 20 पद, गणना 23 अध्याय 20 पद, गिनती की पत्री 23 अध्याय का 20 पद। देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है, वह आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। आमीन। आप कहिए कि मैं आशीष पाया हूं। यीशु बाबा मुझे आशीष किया है। यीशु बाबा मेरे देश को आशीष किया है, मेरे भारत को आशीष किया है, मेरे वेस्ट बंगाल को आशीष किया है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशा को आशीष किया है, मेरे वंश को आशीष किया है, मेरे परिवारों को आशीष किया है, मेरे बाल बच्चे को आशीष किया है, मेरे नौकरी चाकरी में आशीष किया है, मेरे कारोबारों में आशीष किया है। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद दे प्रिय भाई बहनों। इसलिए कि इसहाक को कहा, जिस वर्ष में वो खेती बाड़ी कर रहा था उसी वर्ष में परमेश्वर आशीष किया। आज फिर भाई बहनों यहां से जाएंगे, 2024 का आप आशीष लेके जाइए, अपने घरों में आशीष लेके जाइए, अपने परिवार के लिए आशीष लेके जाइए, अपने बाल बच्चे के लिए आशीष लेके जाइए, अपने कारोबार के लिए आशीष लेके जाइए, अपने नौकरी चाकरी के लिए परमेश्वर आपको आशीषित कर रहा है। ये प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रेम परमेश्वर है। महत्वपूर्ण बातें, इन आशीष को आपको बचाना है। बाहर किसी से किसी के विरुद्ध बात मत करना। ये बाइबल जो आप सुने उसको मन में रखिए, यहां रखिए, याद कीजिए। घर में जाकर, अपने घर में जाकर, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं आपको, आप ये वचन जो सुने हैं, बाहर में किसी से बात उल्टे पे मत करना, किसी फैमिली किसी किसी विरोध में बात। नए साल में अगर आशीष चाहते तो बदल दो अपने को। ये वचन जो सुने आप इसको याद करते हुए घर में जाइए, और घर में जब पहुंच के पहले कदम घर में देंगे आप, अगर घर खोलकर हाथों को उठा के करना, प्रभु घर में आपके आशीष होवे। प्रभु मेरे बाल बच्चे के जिंदगी में पढ़ाई लिखाई में आशीष होवे। ये आशीष 2024 आपके घर में बना रहेगा, आपके बाल बच्चे के भविष्य बना रहेगा। कोई भी छीन नहीं सकता प्रिय भाई बहनों, क्योंकि आप सब आशीष पाए हुए हैं। अब्राहम को कहा था, तेरे द्वारा तेरे पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। आप उद्धार पाए सिर्फ नहीं है, आशीष पाए लोग आप लोग हैं, आशीष पाए, मुक्ति क्षमा पाए लोग हैं, मगर सबसे बड़ा परमेश्वर का प्यार पाए लोग आप हैं। आइए हम खड़े हो जाएं। बच्चे लोग को जैसे शादी नहीं हुआ, तुम लोग को शादी भी हो जाएगा 24 में 24 में 24 में 24 में 24 में 24 में। हम माता नहीं सबको बोलते 24 में 24, सबका शादी हो जाए। तुम्हारा भी शादी हो जाए 24 में, तुम्हारा भी शादी हो जाए 24 में, दिलीप का भी हो जाए 24 में शादी, कि हम लोग भात दाल मच्छी तो खाए। हालेलुया। आइए आशीष को हम आज अपने घर में लेके जाएंगे। किसी को ना देखे प्रिय भाई बहनों, चर्च में आते किसी की बुराई मत करो, वचन को सुनो, अपने हृदय में रखो। आपका आशीष कोई नहीं छीन सकता है, आपका घर को बर्बाद कोई नहीं कर सकता प्रिय भाई बहनों। इस आत्मिक घर, संसारिक घर, मसीह प्रेम है। चर्च में प्रेम को बांटे, सच्चाई को बांटे, ईमानदार से रहे, किसी का क्रिटिसाइज बुराई ना करे। आपका जिंदगी का आशीष कोई नहीं छीन सकता आपसे, कोई नहीं ले सकता प्रिय भाई बहनों।
इसलिए आज अपनी आंखों को बंद कर दे। आज हम लोग आशीष के लिए अपने हृदय को खोले, अपने हृदय को खोले। 1 तारीख को परमेश्वर ने बहुत लोगों से बात किया, बहुत भाई बहनों से, बच्चे लोग से बात किया, मगर आज 2024 का फर्स्ट रविवार, आज आप सबों पर आशीष का बारिश होने में जा रहा है। आप अपने हृदय को खोलिए कि आशीष के लिए 2024 आशीष जुड़ने निजे हृदय खुले दाओ। যিশু বাবা আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি, আমি দরজা খুলে তোমার আশিস আমার হৃদয়ের মধ্যে এসে প্রভু, যেরকম আমি আশিস নেই গ্রামে পরিবারে ছেলে মেয়ের উপর आशीर्वाद আমি দিই प्रभु। सब हम आंखों को बंद करेंगे। आज जो वचन सुनो उसी को याद कीजिए, आप किसी को मत याद कीजिए, घर परिवार को मत याद कीजिए, अपने याद कीजिए। जो वचन आपने सुने, प्रभु आपको आशीष किया है, शिष्य को आशीष किया है, आपका वंश को आशीष किया है, आपके नौकरी चाकरी में आशीष किया है, आपके कारोबार में आशीष किया है, हमारे भारत को आशीष किया, हमारा वेस्ट बंगाल को आशीष किया है, हमारे अन्न जल पर आशीष किया है। हमें किसी से भीख नहीं मांगने पड़ेगा। आशीष तुझसे चाहते हैं ये स्वर्ग पिता, हमें आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं ये स्वर्ग पिता, हमें आते हैं। कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत, न कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, यह स्वर्ग पिता हमें आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं यह स्वर्ग पिता हमें आते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु तू आशीष के झोलों का खोल प्रभु जी, प्रभु तो का मैं आकाश भी भंडार को खोल के तुझे आशीष करूंगा। माने प्रभु जी दया भी है अपार, प्रभु जी हो शक्ति माने प्रभु जी दया भी है अपार, प्रभु जी स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं। हे स्वर्ग पिता हमें आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, ये स्वर्ग पिता हमें आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, ये स्वर्ग पिता हमें आते हैं। हमें कताए की है, रहे निकाय जुफाए की है, हमने बहुत कताए की है, रहे निगम में मिटाए की है, शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं। ये स्वर्ग पिता हमें आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, ये स्वर्ग पिता आशीष तुझसे चाहते हैं, ये स्वर्ग पिता हमें आते हैं।
Yanduria Nami Shahu Yanduria Allah Baba. Oh Ribiar Alabi Shahu Yanami Siki Arabi. Oh my God, Lord, I love you, love. I love you, Daddy. I love you, Daddy. I love you, Lord. Bless your mighty hand, Lord. प्रभु हर एक को आशीष से भर दे प्रभु, हर एक पे तेरा आकाश खोल दे प्रभु। ईश्वर बाबा आकाश खोल प्रभु, बारिश बरसा जैसे मलाकी 3:10 में कहा, मेरे आशीष में खोल रहा हूँ, खोल रहा हूँ, खोल रहा हूँ। भर दे प्रभु तेरे बच्चे लोग को आशीष से, उतरने दे आशीष, उतरने दे प्रभु, हर एक को छुले प्रभु, भर दे प्रभु आशीष से, भर दे ईशु, भर दे प्रभु, हर एक को आशीष से भर दे प्रभु। हमारे देश के जितने पुलिस कमिश्नर सिपाही से पुलिस कमिश्नर है, हर एक को 2024 के आशीष दे, परिवारों में आशीष दे प्रभु। हर आर्मी, एयरफोर्स, नेवल, बेस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, स्पेशल ब्रांच, हर एक को आशीष से भर दे प्रभु। उन लोग घर परिवार बाल बच्चे को आशीष दे प्रभु। ईडी, स्पेशल ब्रांच, सीबीआई, हर एक को आशीष से भर दे प्रभु। हमारे प्रधानमंत्री को भी तेरे हाथों में रखो, आशीष दे प्रभु। उनके मंत्री लेवल के इतने मिनिस्टर सबों को आशीष कर प्रभु। हमारे वेस्ट बंगाल को तेरे हाथों में आशीष कीजिए प्रभु। सीएम मननी ममता दीदी को आशीष कीजिए प्रभु। जितने मिनिस्टर सबों को आशीष कीजिए प्रभु जी। हमारे वेस्ट बंगाल में आशीष कीजिए, भारत को आशीष दे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में 2024 में शांति, आनंद, प्यार, दया दीजिए, आशीष दीजिए प्रभु। जितने जज, वकील, एडवोकेट है, हर एक को आशीष से भर दे प्रभु। जितने डॉक्टर, नर्स, स्टाफ सबों को आशीष से भर दे प्रभु। मैं तुझे धन्य मंडली को और भी आशीष कर प्रभु, जो भटक गए प्रभु, भटकाने वाली आत्मा से उन लोगों को बदल दे प्रभु, कि अपने घर में वापस आए प्रभु। प्रभु कितने बाल बच्चे जो छोड़ दिए प्रभु, उन सबों को भी आशीष करना प्रभु। हर एक सेवक को आशीष कर प्रभु, ईमानदार होकर तेरे सेवा करने के लिए आशीष से प्रभु। घुरने का समय निकाले मगर तेरे सेवा का समय निकाल सके प्रभु। ईमानदार सेवक बना प्रभु, उन लोगों को आशीष कर। हर बहनों को आशीष कर प्रभु। ये साल में लेडीज मीटिंग प्रभु आशीष करके चर्च भरा पूरा रहे प्रभु। हर बहनों को इस्तेमाल कर। हर ईद बच्चे लोग को आशीष कर प्रभु। इन लोग का भविष्य को आशीष कर प्रभु। इन लोग का भविष्य को, देश को तू आशीष कर प्रभु। संडे स्कूल के बच्चे लोग को, हर बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई में आशीष कर प्रभु। हर संडे के बच्चे लोग अच्छे बड़ा बने प्रभु, बड़ा होकर ये चर्च का, समाज का, देश का, परिवार का नाम ऊंचा करे प्रभु। प्रभु हर एक को आशीष कर प्रभु। यहाँ जितने हमारे चर्च के मेंबर भाई बहन, हर एक को तो आशीष कर प्रभु। हर परिवारों में आशीष कर प्रभु। यश सिंह को भी आशीष कर प्रभु यीशु। मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं प्रभु, तुझे महिमा मिले प्रभु। धन्यवाद।